Marshy, swampy and marshy. Shall I remove? Suppose a river is moving like this. River is moving like this, और जब भी फ्लड वाटर आता है तो ध्यान से देखिएगा, when the flood water comes, तो सबसे ज़्यादा फ्लड की स्पीड आउटर बैंक पे ज़्यादा होती है, ऐसा नट? तो ये आउटर बैंक इरोड होने लग जाएगा। फिर यहाँ से पानी इधर आया और यहाँ पे जा रहा है, इट इज इरोडिंग दिस आउटर बैंक। अब यहाँ से वाटर इज गोइंग टुवर्ड दिस, सो इट इज इरोडिंग विच, और कुछ देर के बाद ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और जब यहाँ से जो इरोड करेगा, ध्यान से, जो यहाँ से इरोड करेगा उसको इधर डिपॉजिट करेगा। आपको ये, तो इट इज डिपॉजिटिंग दिस साइड, और यहाँ से इरोड कर रहा है तो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। यस, यहाँ इरोड कर रहा है तो डिपॉजिटिंग ऐसे जाता है। इट इज वाटर इज गोइंग डाउन लाइक दिस, इट इज गोइंग ओवर देयर एंड आउटर बैंक में इट इज इरोडिंग एंड डिपॉजिटिंग टुवर्ड द इनर बैंक, डिपॉजिटिंग टुवर्ड्स इनर बैंक। तो इसकी वजह से क्या होने लगा, ऐसे आपने देखा। तो इस पिक्चर को हटाएं तो रिवर क्या करने लगा, इट इज स्टार्टिंग मोर meandering. Yes or not? River starts what? More meandering. And again the flood every year is coming. Again this outer banks keep on eroding. And this outer bank, it is also keep on eroding, and this outer bank keeps on. अब ये और ये और भी meander होने लग रहा है, और यहाँ पे इसने it is starting more meandering, और यहाँ पे deposition, and this is I said that more meandering. Is it clear? So the river starts what? Further more meandering, yes or not? And further ये outer bank again erode होगा, it will be also कुछ देर के बाद ये मिल जाएगा। yes or not? This narrow neck will meet and the river now start moving in this fashion, और ये क्या हो जाएगा, cut off, and this is known as Oxbow Lake. It is known as what? So it is a natural or man-made? So Oxbow Lake can be what I said that, tell me? Natural? It is clear? Saline lake, or better to say playa, क्या बोलते हैं, saline lake, like Sambar lake of I said that Rajasthan, it is in a wetland, it is I said that saline lake or playa. Saline lake or playa, can you remember? Yes or not? And if I said that man made, if I'll go and see, यहाँ पर जैसे I said that lakes, यदि देखें natural lakes, ponds, they are also what? Natural. So natural are what? Swampy, marshy, oxbow, saline or playa lake, lakes and ponds. Uller lake, Hokersar lake, these are the lakes and these are natural. So Uller lake is, I said that what? Wetland. Hokersar lake is what? So जो lakes हैं वो भी wetlands हैं. Yes or not? Yes. Shall I remove? चलिए, man-made. Man-made में if I am talking about cooling pond, every industrial region, industry, iron steel industry के आसपास क्या बनाया जाता है? Lots of water has been accumulated and it is, this water is utilized for cooling of the steel plant. Yes or not? So that is known as what? Cooling pond. Then cooling pond is what I said that? Man-made or natural?
dams and reservoirs are man-made or natural? So Pong Dam is what I said that on Bias River, Pong Dam is in a what? Wetland. It is in a man-made. Yes or not? Harike wetland in Punjab where the Satluj Bias River is meeting, and that is I said that what? Which one? Man-made. And I said abundant quarries, माइनिंग एरिया क्या किया गया? गड्ढा है, छोड़ दिया गया, वाटर एक्यूमुलेटेड. लेकिन बनने के लिए एक चीज होना जरूरी है, पानी नहीं. इट इज आई सेड दैट लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी. ये नहीं कि पानी हो गया सर ये वेटलैंड हो गया. नो, इट शुड हैव व्हाट? largest biodiversity. So every lakes, every water accumulated region is not wetland. They should support with what? Every oxbow lake is not, I said that, wetland. Yes or no? Every swampy area is not. In the Rajasthan there are several saline lakes. So only Sambar lake is wetland. Understood it? So every cannot be. It should have what? Supported by largest. Shall I remove? So क्या आपने देखा कि lagoon lake can be natural and man-made? Yes or not? Next point I said that it can be inland or coastal. तो अभी तक जितना भी आपने देखा कहाँ था? It is inland. Whatever you have seen, what is this? Inland. Suppose, listen me carefully. थोड़ा सा आप लोगों को रण ऑफ कच्छ का फॉर्मेशन बता देता हूं मैं. ये आप देखते हैं, this is what Gujarat and this is Kutch region, and this is what I said that run of Kutch 2 area, run of Kutch and little run of Kutch. Or earlier this region was under the ocean. ये ocean था. It is not like this. और ध्यान से रखिएगा, कोल किसके वजह से बनता है? वेजिटेशन की वजह से. और पेट्रोल किसकी वजह से? मैराइन एनिमल्स. पेट्रोल, हाउ इट विल फॉर्म? व्हेन द मैराइन एनिमल्स कीप ऑन बरिंग, in 200 to 300 million years it will, their organic parts convert into petroleums, convert into natural gas and gas hydrates, and their inorganic part जो skeleton होता है, it is calcium carbonate. It will form what? Limestone. So on the continental shelf, जहाँ पे भी ओशन का छोटा सा बॉटम होगा वहाँ पे क्या बनेगा? And river is depositing, और सारे marine animals 200 to 300 million years में convert into what? Petroleum plus what? Plus gas. तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है पूरा. ये आप जानो कि मुंबई हाई कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल सेल्फ. तो बस हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है. हमारे पास बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है. वी आर ओनली collaboration should be better. We can be able to enhance and exploit better, more natural resources in the coming period. ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा था. इंडस रिवर पहले यहाँ आ रहा था, and they keep on depositing their sediments. धीरे धीरे ये मराइन है, और यहाँ पे मराइन एनिमल्स कीप ऑन व्हाट? बरिंग. और यू कैन बी एबल टू सी कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों का मतलब मिलियन ईयर्स में, कुछ दिस इंडस रिवर वाज नॉट देयर. इट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड दिस. इट इज कराची. आज के डेट में इंडस रिवर इज दिस शिफ्टिंग ऑफ रिवर फेनोमेना टेकन प्लेस. और इसमें पूरा डिपोजिशन सेडिमेंट नहीं हुआ. ये थोड़ा सा क्या हो गया? मार्सी. क्या रह गया? यस और नॉट? You see, marshy and saline region is known as what? Ran. Marshy and saline region
क्या बोलते हैं? रण। व्हाट इट इज नोन एज? इसीलिए इसको बोला जाता है रण ऑफ कच्छ। तो कैसा ये, टेल मी, ये नीचे से समुद्र से ऊपर आ रहा धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से। कैन आई से दैट दिस कोस्ट ऑफ गुजरात इज एन इमर्जेंट टाइप ऑफ कोस्ट? आपको थोड़ी ज्योग्राफी समझा दी, ठीक है। और ये पोर्शन भाई साहब ऐसे रह गए, और ये पाकिस्तान बोलता है मेरा है, वो बोलता है मेरा है, सर क्रिक बन गया। अंडरस्टूड इट? ऑयल रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व होगा कि नहीं इस रीजन में? और क्रिक्स आर द रीजन ऑफ व्हाट? वेटलैंड। क्रिक्स आर द रीजन ऑफ, क्रिक्स आर द रीजन ऑफ, केवल क्रिक्स समझाने के लिए बताया ये सारा चीज। समझ में आया? छोटे छोटे क्रिक्स। यहां पे नर्मदा एंड तापीज आर मेकिंग एस्च्यूरी, एस्च्यूरीज आर वेटलैंड। कहां पे? इट इज इनलैंड और कोस्टल। एंड यहां पे लगून लेक केरला। यस, टेल मी। सो विच आर द कोस्टल? टेल मी फास्ट। क्रिक्स, एस्च्यूरी, लगून्स आर व्हाट? कोस्टल वेटलैंड। लेकिन सारे जरूरी नहीं कि होंगे, दे शुड सपोर्ट बायोडायवर्सिटी। यस और नॉट? यस और नॉट? मेरे साथ बोलेंगे मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। व्हाट आई सेड दैट? मैरीकल्चर और, लेकिन कोस्टल रीजन में सम वी कैन क्रिएट आल्सो मैराइन कल्चर। मतलब मैंने एक जाल पूरा किया एंड वी स्टार्टेड ब्रीडिंग फिशेस, दैट इज नोन एज मैरीकल्चर और एक्वा। तो दैट कैन बी मैन मेड। कोस्टल में ही क्या दिख रहा है? मैन मेड। इट कैन बी नेचुरल। लगून्स आर estuary, creeks, estuary and in the Kerala lagoons are what? Natural. तो अभी हम लोगों ने कोस्टल में क्या क्या देखा? टेल मी फास्ट। क्रिक्स, यही पूछा जा सकता है ध्यान से। क्रिक्स, estuary, lagoons. Yes or not? It can be what? Wetland. It is in a coastal. और यहां पे आएंगे तो ये सारा क्या है? कोरल आइलैंड्स है। दीज आर व्हाट? कैन यू रिमेंबर? और मेरे साथ बोलेंगे सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कौन कौन? सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। विच फॉरेस्ट? जहां पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और विच इकोसिस्टम? मैराइन इकोसिस्टम। दे आर व्हाट? एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कंबाइनिंग दिस ट्रांजिशन जोन, जिसको इकोटोन पढ़ते हैं आप लोग। तो इसका मतलब कौन कौन सा हो गया? टेल मी। अरे कोरल्स एंड मैंग्रोव्स विच कैन बी विच आर क्रिक्स। मैंने मैप्स के थ्रू समझाया, याद कराया, जैसे आप याद कर सके। क्रिक्स, एस्च्यूरी, लगून, कोरल्स। तमिलनाडु के पास कोरल आइलैंड्स। एंड देयर आफ्टर वी हैव बीन एबल टू सी व्हाट? क्या है? मैंग्रोव्स। इज इट क्लियर? एंड एट द सेम टाइम कोई भी गल्फ हो, या गल्फ ऐसे होता है, ये है गल्फ, this is bay and this is bight. Gulf, bay, bight. ज़्यादा ओपन होगा तो it is, if it is more open it is known as what? Bight. तो जैसे इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसको क्या बोलते हैं? Size doesn't matter, openness matter. How much it is open. It is Gulf, this is bay, this is bight. Size doesn't matter, shape matters. Yes or not? Gulf, bay, bight. The Gulf and bay can be also what I said that what? Wetland. Coastal areas में तो छोटा, बहुत सारा छोटे छोटे होंगे। Gulf and I said that what? Bay. और इसी कोस्टल में कुछ आपके क्या हैं? टेल मी।
man made, and which are the man made, tell me? Aqua culture और, तो इतना तो समझ में आ गया कि wetlands are what I said that, tell me? Inland, coastal, it can be natural, it can be, और इंडिया में लगभग thousands of wetlands are there, बट जिसकी हमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करना है उसको कन्वेंशन ने क्या बोला? 26. हाउ मेनी? 26. इट इज क्लियर? और जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी होगी उनको सारा 26 वेटलैंड्स बताया गया है. इज इट ओके? Another, it is not necessary that it should be throughout the year submerged or partially. मतलब ये part of year भी हो सकता है. It can be what? Throughout the year. So which are the three characters? Tell me. First it is, I said that natural and man-made. कर लिया आपने. Coastal and inland. Another, it is submerged throughout a year or part of a year. Yes, Anna? Is it clear? Next point, if I am coming, I said that can we say that लिखेंगे इस environmental role. What I said that? Environmental role. इसका environmental role क्या है? What is the importance of what? This wetland. What is the importance? If it is surviving large amount of, I said that large amount of biodiversity, तो यहाँ पे food की कमी होगी? Yes, tell me. Lots of migratory birds and species will migrate thousands of kilometers and come in this region. They will find better shelter. They will find better breeding space. Yes or not? क्योंकि फूड की कमी नहीं है और साथ में शेल्टर अच्छा से मिल रहा है. Environment is better. So this is the best place of what? Breeding. And then you can be able to see that the animals are migrating from Antarctica and coming into what? India. Understood it? They are migrating from China coming to India in the different wetlands. Why? They are finding better. तो यहाँ पर फूड की कमी है? No. So लिखेंगे large amount of food availability, क्योंकि ये कैसा है? टेल मी. लार्ज अमाउंट ऑफ वॉट? बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है. तो आप लोग कभी देखते होंगे, इफ इट इज आई सेड दैट कोयला दे नेशनल पार्क गए और वहां पर देखोगे बर्ड्स आए रहेंगे, आप मुंह मारते रहेंगे. मुंह डालो कुछ न कुछ तो आएगा अंदर. सो जस्ट आई एम टेलिंग यू, बहुत सारा है ना. पेड़ पे चढ़ जाओ, ह्यूमिडिटी है, वहां पर भी कुछ न कुछ खाने के लिए मिलेगा. मतलब हमें नहीं, बर्ड्स को. So nearby region, I said that they have created what it is in a good amount of biodiversity. So large amount of food availability. Next one it is, yes, shelter for the animal species. In the bracket, which is animal species? Migratory. Next one, better breeding place. Better. Yes or not? और इतने सारे इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है. इफ द टॉक्सिक वाटर विल कम, दिस ऑल टॉक्सिक वाटर विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्योर वाटर. बिकॉज द बायोडाइवर्सिटी, आप जब कभी पढ़ते हैं कि वाटर पॉल्यूशन कैसे दूर किया जाता है, देयर आई सेड दैट पॉल्यूशन दूर करने के लिए थर्मो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन आल्सो. विच वन आई सेड दैट? यस नॉट? द बायो रेमेडिएशन मीन्स कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो अंदर क्या करे? टॉक्सिक को डिग्रेड कर दे, तोड़ दे. यस और नॉट? सो कैन आई